on the dais, we have with us Honorable Minister of State for Culture, Shrimati Meenakshi Lekhi, Secretary Culture, Shri Govind Mohan Ji, Joint Secretary Culture, Shrimati Amita Prasad Sarbai, Joint Secretary Culture, Shrimati Uma Nanduri, Member Secretary, Indira Gandhi National Center for Arts, Dr. Sachidanand Joshi, Chairperson, Sangeet Natak Academy, Dr. Sandhya Puricha. Now I would request Secretary Sir to make his opening remarks. Good afternoon to all of you. We have requested our Honorable Minister of State to share this press meet today with the broad objective of informing you about the diverse and large-scale activities which have been put together, organized by the Ministry of Culture this year for the entire duration of the Republic Week, as we now call it, which begins today, which the government has in honor of Netaji Subhash Chandra Bose called it the Parakram Day, and which ends with the Martyrdom Day of Mahatma Gandhi, which is January 30th. So over this entire duration, a number of programs have been organized. And rather than me giving you an idea about each of these programs, I would request the Joint Secretaries concerned and the other senior people here on the dais to brief you about these programs. I will only say that what we are doing this year is number one, a continuation of the philosophy of this government to incorporate cultural elements more strongly with the normal practice of the Republic Day and the Republic Week that has been followed so far, which is largely the demonstration of the military capabilities of the country. That of course remains, and without diluting that in any way, we have also, in pursuance of government's policy, now started displaying more and more of the culture of this great and diverse country. So this time the displays will be bigger, larger in scale, and much more diverse in in the way the art and culture of this country is exhibited. We will also be sort of engaging with the people of the country, in all parts of the country, much more deeply to carry forward this message of unity and diversity, or Ek Bharat Shresth Bharat, which is the bedrock, a foundational pillar of the government's policy on overall governance. So with that, I will now give the mic back to Veena ji, and who will request one by one our senior officers to tell you about what we are planning to do this year. And our Honorable Minister then will conclude and give you her concluding remarks on what we intend to do this year. Thank you. To brief on Anand Sutra, the endless thread showcasing nearly 1900 saris and drapes from every corner of the country, and also on celebration of Parakram Divas. नमस्कार। जैसे कि सेक्रेटरी सर ने बताया है, हमारा जो पूरा रिपब्लिक वीक है वो इस बार बहुत ख़ास है, क्योंकि जो इस बार हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस है वो 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं, और उसकी शुरुआत जो होगी वो आज शाम को रेड फोर्ट में जो प्रोग्राम है पराक्रम दिवस। जैसा कि आपको मालूम है 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नेताजी के जन्म उनके 125th जो ईयर एनिवर्सरी कमेमोरेशन था उसको पराक्रम दिवस के नाम से उसकी घोषणा की थी, और उसी कड़ी में आज रेड फोर्ट में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जो 7 दिन तक चलेगा, और उसको ऑनरेबल पीएम आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। पराक्रम दिवस में क्योंकि रेड फोर्ट जो था वो नेताजी की जो लाइफ थी और जो आईएनए के जो ट्रायल्स वहाँ हुए थे उसकी वजह से उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इस रेड फोर्ट को इस बार चूज़ किया गया हम लोगों ने, उसी का चुनाव किया है कि हम अपने पराक्रम दिवस का जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे आयोजन की जा रही है।
तो उसमें जो ओपन एयर एग्जीबिशन लग रहा है वो आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स लगा रही है। पिक्चर एग्जीबिशन और पेंटिंग वर्कशॉप है वो ललित कला एकेडमी कर रही है। बुक्स की एग्जीबिशन है, जो जितनी भी बुक्स नेताजी के ऊपर प्रकाशित हुई हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, उसको हम लोग वहाँ पे दर्शा रहे हैं। और स्कल्पटिंग वर्कशॉप वो भी ललित कला एकेडमी द्वारा किया गया है। और जो मशहूर आपके सैंड स्कल्पटर हैं पद्मश्री अवॉर्डी सुदर्शन पटनायक, वो भी वहाँ पे सॉयल लाया गया है, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट से भी, जहाँ से मोइरांग में पहली बार जो हमारा झंडा था वो फहराया गया था, मोइरांग का भी जो उसकी भी जो सॉयल है उसको लाई गई है और वहाँ पे सैंड स्कल्पचर हो रहा है। उसके अलावा एक स्पेशल इंडोर एग्जीबिशन एरिया है जिसमें होलोग्राम है नेताजी का, नेताजी के पत्र रखे गए हैं चुनिंदा जो वहाँ पे हैं, नेताजी के कुछ भाषण हैं जो आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, नेताजी की जो यात्रा थी कि वो जो जब वो यहाँ से निकल के भागे थे तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए, वो सारा उसमें दर्शाया गया है इंटरैक्टिव फॉर्म में। एक 270 डिग्री का थिएटर बनाया गया है जिसमें आप इमर्सिव शोज हैं, और मैं भी बोस आप AI जनरेटेड फोटो अपॉर्चुनिटी है उसके वहाँ पे लोगों के लिए। एक प्लेज वॉल है जहाँ पे पहला प्लेज जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी आम जनता वहाँ आ रही है वो उस प्लेज वॉल पे अपने विचार जो हैं वो उसको व्यक्त कर सकते हैं। आई एम नेताजी ऑल्सो फोटो मोज़ेक भी वहाँ पे दर्शाया गया है। जो सबसे खास आकर्षण नेताजी के इस पराक्रम दिवस पे किया जा रहा है वो है एक लाइट एंड साउंड शो जिसमें थिएट्रिकल एलिमेंट्स भी हैं, जिसको NSD के साथ सौजन्य के साथ मिलकर उसको किया गया है। वो दीवाने आम के ऊपर उसको 20 मिनट के करीब ये प्रोजेक्शन मैपिंग है विद थिएटर, और जिसकी स्क्रिप्ट मशहूर जो स्क्रिप्ट राइटर हैं अतुल तिवारी, उन्होंने लिखी है स्क्रिप्ट। तो ये सारा कार्यक्रम जो है ये 31 तारीख तक रेड फोर्ट में चलेगा। भारत पर्व भी साथ साथ चल रहा है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का, तो उसके साथ जो भी भारत पर्व देखने आएगा वो नेताजी के पराक्रम दिवस के जो भी हम लोगों ने एग्जीबिशंस लगाए हैं और जो इंटरैक्टिव चीज़ें दर्शाई हैं वो दर्शक यहाँ पे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अनंत सूत्रा की बात करें तो अगर आप कर्तव्य पथ पे जब जाएंगे तो दोनों साइड में आपको ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इसका नाम है अनंत सूत्रा। ये एक एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई है जो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एंडलेस है। ये सेलिब्रेशन है हमारे जो साड़ी और जो वीव्स एंड एम्ब्रॉयडरीज कल्चर है इंडिया की, जो टाइमलेस है और जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संजो के हम लोग अभी तक संजोया गया है। और नारी शक्ति, क्योंकि इस बार थीम विमेन एम्पावरमेंट का भी है, तो उसको भी एक तरह से हम सल्यूट कर रहे हैं अनंत सूत्रा के थ्रू। 1870 पैनल्स होंगे जिसमें डिफरेंस हर स्टेट के, हर यूटी के आपको साड़ियाँ, वीव्स, एम्ब्रॉयडरीज, ब्रोकेट्स, ब्लॉक एंड डाइज ये दर्शाए गए हैं। उसके अलावा 120 इलस्ट्रेटिव पैनल्स हैं और राइटअप्स हैं। जो खास बात है उस पैनल की कि वहाँ पे QR कोड दिया गया है। आप अपने फ़ोन से उसको जब स्कैन करेंगे तो IGNCA जो नोडल एजेंसी है इस पूरे एग्जीबिशन को जो क्यूरेट कर रही हैं संध्या रमन डिज़ाइनर के साथ, उनकी वेबसाइट पे हम पूरी इंफॉर्मेशन उस साड़ी के बारे में और उस वीवर के बारे में आपको मिल जाएगी। तो ये अनंत सूत्रा ये ट्रैवलिंग एग्जीबिशन होगा। हम लोग उसकी कुछ खास साड़ियों को लेके हम लोग फिर बाद में इसको एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन करेंगे। और 2 खास वहाँ पे एग्जिबिट हैं जो VIP डायस के साइड में लगाई गई हैं। एक साड़ी है जो 150 साल पुरानी है और वो कश्मीर और पंजाब के पास जो गोटापत्ती का काम होता है उसको दर्शाता है, और एक साड़ी है जो ऑटिस्टिक बच्चों ने पेंट की हुई है। तो ये 2 खास एग्जीबिशंस हैं उसके। तो ये अनंत सूत्रा के बारे में। नमो नमः। जैसा सेक्रेटरी सर ने अभी बताया कि कल्चर कंपोनेंट को बहुत ही प्रोमिनेंट
करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साल 75वें सालगिरह पर हेराल्डिंग में सबसे पहले कल्चरल हेराल्डिंग शुरू होने वाली है। जैसे कि युद्ध की घोषणा करते समय हमारे पुराने वाद्य बजते थे, शंख, दुदुम्बी, तुतारी वगैरह, तो ये सभी वाद्यों को भारत के विविध प्रांतों से लाके 100 नारियां इकट्ठा होके ये हेराल्डिंग करने शुरुआत करने वाली है। बहुत ही आकर्षक, नयनरम्य और चैलेंजिंग है, क्योंकि हर एक नारी अलग अलग जगह से आई है और उसका नाम हमने आह्वान लिया है ये पूरे हेराल्डिंग को। और उसमें अपने अपने कॉस्ट्यूम में और अपने अपने वाद्यों के साथ नारी शक्ति अपनी प्रदर्शन करने जा रही है। ये हेराल्डिंग हुई और अंत में जब नृत्य का जो वंदे भारतम है, वंदे भारतम का हमारा थीम है संकल्प से सिद्धि, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नारी शक्ति और पंच प्राण को महत्व देकर विकसित भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा गान किया गया है। उसमें पूरे हिंदुस्तान से 1500 नारी, 1500 स्त्रियां कर्तव्य पथ पर विविध नृत्य की अपनी अपनी वेशभूषा में, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, मास्क नृत्य, मास्क डांस, पपेट्स एंड बॉलीवुड, तो एक ऐसा और पूरा कर्तव्य पथ आप 1500 नारियों के नृत्य से देख पाओगे। ये एक अनूठा प्रयोग है जो पहली बार होने जा रहा है और उसमें पूरे हिंदुस्तान से 30 स्टेट से अलग अलग नृत्यांगनाएं आई हैं। ये नृत्यांगनाओं का सिलेक्शन कंपटीशन लेकर किया गया था और लास्ट 1 महीने से अथक प्रयत्न कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। इसकी कोरियोग्राफी देवेंद्र शेलार की है, म्यूजिक रंजीत बारोट का है और सुभाष साइगल स्क्रिप्ट लिखी है और हरीश भीमानी जी का वॉइस ओवर है। संकल्पना मैंने की है। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी से मदर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर के बारे में हमें बताएं। नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस बार भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी, इस विषय पर केंद्रित है। आप सभी को स्मरण होगा कि संसद के नए भवन में संस्कृति मंत्रालय ने जो पूरा आर्ट वर्क का काम किया है, उसमें जो केंद्रीय कक्ष है वहाँ पर लोकतंत्र की जननी भारत इस विषय को लेकर एक बहुत विस्तृत प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि एक मल्टी लेयर्ड प्रदर्शनी है, जिसमें अलग अलग माध्यमों के जरिए हमने भारत कैसे ही लोकतंत्र की जननी है ये दिखाने का प्रयास किया है। उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए गणतंत्र दिवस की झांकी के रूप में इस बार डबल ट्रॉलर यानी 2 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलर की एक विशाल झांकी संस्कृति मंत्रालय ने किया रहा है। लोकतंत्र की जननी इस विषय पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा काफ़ी विस्तृत शोध विगत कुछ समय से किया गया है और इसलिए ये एक उचित अवसर है जिसमें हम पूरे देश के सामने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इस बात को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो पहला ट्रॉलर है उसमें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वैदिक काल से या इससे भी पहले के काल से लोकतांत्रिक परंपराओं का भारत में अनुसरण होता आया है। जैसे कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद का श्लोक है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। तो कैसे सबको साथ लेकर सबकी सहमति से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ये हमारे यहाँ वैदिक काल से परंपरा रही है। और उसके बाद भी या जैन दर्शन हो या बौद्ध दर्शन हो या भारत के अन्य मत पंथ और संप्रदायों के दर्शन हो, सभी में कैसे आपसी सहमति के साथ शासन व्यवस्था की जाती है, इसको हमने ट्रॉलर पर दिखाने का प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत में महान शासकों की परंपरा रही है, तो चाहे वो सम्राट चंद्रगुप्त हों या सम्राट अशोक हों या विजयनगर का साम्राज्य हो या सम्राट अकबर हों या छत्रपति शिवाजी हों, सभी ने कैसे लोकोन्मुखी प्रशासन की बात की है, इसे भी इस ट्रॉलर में दिखाने का प्रयास किया गया है।
इसके साथ ही हमने इसमें अशोक का एक शिलालेख जो जूनागढ़ का प्रसिद्ध शिलालेख है उसकी भी प्रतिकृति यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उसमें लोकोन्मुखी शासन की पीपुल्स ओरिएंटेड गवर्नेंस की बात की गई है। उसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रैक्टर है उस पर हमने एक आकृति प्रस्तुत की है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारी संविधान निरूपण समिति के अध्यक्ष थे वो संविधान को संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं। दरअसल चूँकि हम भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष को मना रहे हैं इसलिए ये सामयिक है कि हम उस ऐतिहासिक अवसर को एक बार फिर से सबके सामने पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। और उसके पीछे हमारी एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति है जो कि पहली बार संभवतः कर्तव्य पथ पर दिखाई जा रही है। हमने एनामॉर्फिक कंटेंट के साथ यानी 3D डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो थोड़ा सा एडवांस स्वरूप रहता है उसके माध्यम से हम कुछ और चीज़ों को भी लोकतंत्र की जननी के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कैसे जनपद प्रणाली में लोकतंत्र हमारे यहाँ पर था या महाजनपदों में कैसे लोकतंत्र था या विजयनगर साम्राज्य में कैसे लोकतंत्र था या फिर हमारी संविधान सभा जिसकी क्या विशेषता थी कि कैसे सभी वर्गों के सभी विचारों के लोग वहाँ पर थे उन्हें दिखाने का प्रयास किया है। और फिर जो हमारी लोकतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद जो लोकतंत्र की यात्रा है कैसे बैलेट बॉक्स से निकलकर और EVM तक पहुँची है उसे दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ ही जो ग्राउंड एलिमेंट हैं जो हमारे साथ जो चलेंगे उसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे भारत की अलग अलग जनजातियों में विशेषकर उत्तर पूर्व की जनजातियों में कैसे अलग अलग जगहों पर एक सबकी सहमति से शासन व्यवस्था की बात की गई है जिसमें एक लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण होता है। आपको याद होगा कि मौलाना जैसे गाँव को कहा जाता है कि जहाँ पर लोकतंत्र की परंपरा की शुरुआत हुई थी या फिर मैसूर का एक गाँव सुदूर है वहाँ पर भी लोकतंत्र की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो चूँकि झांकी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाना संभव नहीं होता फिर भी प्रयास किया गया है कि भारत को क्यों लोकतंत्र की जननी कहा जाता है